Am I audible to you? Asfan? Yes. Shakir, am I audible to you? Yes. You're audible, sir. No problem. Okay. Fine. So then we will start our activity. You can see here. So next activity after completing this one, create exception review page. So we have create distribution center summary module we have. This is the first activity. After completing last activity, this exception review, after exception review UX page, we have this activity. Create create distribution center summary module. We have this one. So in this one you can see inventory 03 distribution center module we are creating. So we can see here we need to create this one. So new module we need to create. So inventory 03 distribution center summary module. So I should go to workspace. So I should create module here. हाँ बोलिए. हाँ ले लो ज़्यादा. So we need to create module here, insert module name, and I am inserting number 2. Why? Because already we have module here. So same module we created. That is the second time I am creating same module. That is the reason I am inserting number 2 here. So other you didn't require this one number 2. Why? Because you will create first time. So you can see here P2 product list. Yes, distribution center. These two are dimensions. What are the dimension we should take? P2 and P2 we have, and yes, G3 location distribution center is the second one, second dimension. So next you can see here. So category and functional area we can set later, and you have line item stock exceptions here. So I should click OK, then I will get create module here. Yes, I created module. Time should be there in months. You can see time should be in months. So you should select here, time should be in month. Time scale you need to change weeks to month. Yes, so we created this one. Yes, completed.
So you can see, build the formula for the line item to show the total number of safety stock exception by distribution center and product on monthly time scale. Then select the appreciate summary method setting. So you can see here, we need a formula for this one, inventory 03. So we have formula. This is my formula, you can see. So inventory ordering, in inventory ordering module, safety stock exception count you should take. So I have already created this same module, so you can select formula from here. If I copy from here, yes, I inserted. So you can see here, yes, you can see we got values. So this is my inventory 03 distribution center summary module. So fine, I will share this formula in chat box. Yes, formula for yes, we completed this one. Fine, I shared this. I shared this formula. Fine, anyway. So, am I audible to you? No one is responding. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And we completed this one. This module we created. So inventory 03 distribution center summary module we created. So and we inserted formula. Everything is completed this module. So next, we have next that create a distribution center summary module. So yeah, distribution center capacity module we should create here. So you can see, create distribution center capacity module we have here. So next module. So in this one you can see, so before going to this one, the regional vice president also want to review the distribution center capacity. In this module what we are doing, so what is the exact capacity of distribution center? Each and every distribution center we should know how much product we can keep in that distribution center. That is meant by distribution center capacity module. So what is the capacity of that storage distribution center? We should know how much we are keeping and what is the capacity. We should know the, two things. So you will
you will create similar module to inventory 03 distribution center summary, but without product dimension. You could be done with the subsidiary view, but that would not be best practice. So that is the reason we are creating another module, inventory 04 distribution center capacity module we are creating. So before creating this module, import data into distribution center details. So and distribution center, what we need to do, so in system 07, in supply chain model, open system 07 distribution center module. In the in system 07 module, we should create new line item capacity. Each and every distribution center capacity we should know. That is the reason add number formatted new line item into system 07 distribution center. So you should go here, systems module, system 07 module. So system 07 module, we should insert this capacity module. Actually I inserted just now, that is the reason we can see here. So otherwise simply you will not get this module. So you can see here, I removed this data, I inserted this one capacity module. So after inserting this module, we should download this file. Yes, after downloading this file, so you can see we need to import that data into here, import data into system 07 module. So you should go here, click on here, import, and upload new file. Just now whatever we downloaded, distribution center capacity module we downloaded. So you should open this one. So you can see here, click on next. So what is the for this one, which is the best option? SG3 location distribution center, which one we should keep, column 1 or column 2? Yes, Column 1. column. Why we should keep column 1? Location. You have location here, New York, San Francisco. You can see, that is the reason you should keep column 1. And this one, what should we keep? System 07 distribution center line items, code, country, region. So which one we should keep for this one? Whatever is left, column header. If you keep this one, next you should keep column header for second one. So if you want check either it is get mapped or not, you can check like this. Everything is fine. So here it doesn't get mapped. So then what should we do? We should click on map items manually. Then you should click on capacity and map from here. You should map to here, capacity. You should check that each and every tab. If it doesn't get mapped, so then in that situation you should map manually. So whatever we required, yes, we completed this one. So directly you should click on run import. Sir, when we created this system module, Yes, system 07 module, distribution center detail module, at that time this capacity column was not there, no sir? doesn't there. Just now what I am saying, just now I am inserted. Yeah. Okay. So yes, that is the reason I completed this. I inserted this module line item and I imported this data, and next the data is uploaded in one time import. Delete the action from the model after the completing import. So he is asking to remove that action from here. It is doesn't required here. So
from actions you can see system 07, they are asking to remove this one. You can delete this action. Then create distribution center capacity module. We should create this module now. So inventory 04 module we should create. Inventory 04. Already I created inventory 04 module, so that is the reason I will create number 2 here. Inventory 04 capacity number 2 I will create. Fine. So you can see what are the dimension I should take. G3 location distribution center, and time should be there in month. I will take this dimension. Time is fine, already there dimension. So what are the line items I should take? Total beginning inventory, distribution center capacity line item, yes, completed. So I inserted 3 line items. Time should be there in months, so I should convert from week to months here. Yes, I converted time scale from weeks to months. Yes, completed this. I inserted line item, I changed dimensions, and after that add formulas and review summary method setting, and fiscal year and half year total should be shown as a averages. So we should insert formula for these 3 line items. So you can see here total beginning inventory line item, we have formula this one. So distribution center, 3 formulas we have. So already I created this module, so I can copy from here. So inventory 04 module, if I open, if I go here blueprint view, so for total beginning inventory, this is my formula. For distribution center capacity, we have formula this one. Directly we are taking from system 07 whatever we added, from that module we are taking this capacity, module name and line item name, that's it. So finally we have percentage full, formula for percentage full. Yes, we completed inserted formulas, so that I got this one, total beginning inventory, distribution center capacity and percentage full. So each and everything I created here. We got data here, how much, what is the total beginning inventory means how much capacity, how much stocks we have, and distribution center capacity means how much product you can keep in that particular distribution center. So then percentage full means how much percentage is there, 68% is there.
So we need to change actually percentage here. Like format should be in percentage. I didn't change here, that is the reason you are getting 0 point something. So if I keep here percentage simply, so if then automatically you will get 68 percentage there. Yes, you can see 68 percentage we got. So 68 percentage stock is there in our distribution center. So you can see here only 12% stock is there. So like this you can know how much stocks we have in that distribution center, what is the capacity of particular distribution center, and how much percentage we stored product. So this is the we have difference. So 3 line items we inserted, and each and everything data we imported into these modules. So is it fine for everyone what we did here? Yes, क्या sir. क्या करें यार यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कैपेसिटी मतलब क्या है? मॉड्यूल का नेम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कैपेसिटी. What is meant by distribution center capacity? Yes. What is meant by distribution center capacity? The capacity of the warehouse, how much the warehouse can hold the material. Okay. What is total beginning inventory? The starting stock, Starting stock, how much we have in our warehouse. warehouse? That is the second one. And third one, what is the percentage? How much stock is still available in the warehouse? The percentage of the stock available in the warehouse. So how much percentage we stored? Out of 100%, how much percentage we stored? So this is the way we need to check each and everything. So I am sharing these formulas in chat box. So did you complete each and every activity, Zafar bro? What is your status? Sir, I don't have this workspace. So I already I give something I given someone workspace now. You are in Dawood. Dawood, in that one I'm doing. how I am inserting, same way you should insert like module number 2 like this. Yes, sir, like that viewing and deleting it. Then you can delete, no problem. Either you can keep, no problem. So if you create number 2, if you what is the most big module whatever we have, that one is you should delete. Okay na? So if you keep that one, it become problem for you. अगर ज़्यादा बड़ा है अगर आप रखे तो क्या होता, आपका स्पेस वेस्ट हो जाता. छोटे मॉड्यूल्स डिलीट करने में मतलब नहीं है ना. अब अभी मॉड्यूल्स का मॉड्यूल 2 मॉड्यूल्स जो है आपको सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, वो बताता हूँ अभी. वो 2 मॉड्यूल के अलावा कौन सा भी रख सकते, प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है पूरा है जितने भी मॉड्यूल्स है. मगर वो 2 मॉड्यूल्स अगर रखेंगे तो आपका वर्क स्पेस पूरा फुल हो जाता. तो मॉड्यूल्स, अपने मॉड्यूल्स के अंदर सबसे पहले ये मॉड्यूल्स देखो, मॉड्यूल्स के अंदर जाओ. मॉड्यूल्स के अंदर अपना जो यहाँ पे देख सकते सीधा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा बड़े मॉड्यूल्स क्या है यार? मॉड्यूल्स के अंदर देखो, इन्वेंट्री 1, बिगिनिंग इन्वेंट्री 1 मॉड्यूल के अंदर कितना है आपको? डिमांड फोरकास्ट 1 lakh. 1 lakh समथिंग इज देयर. सो फाइन. सो दिस वन, ये जो है डिलीट करना पड़ता अगर क्रिएट करने के बाद. सो ये ठीक है. तो ये जो है ये हो गया. ये जो है ये बहुत बड़ा है, 57 lakhs. 57 है. 57 लाख, वो 1 लाख का तो प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा नहीं है. देखो 57 लाख है यहाँ पे.
ये भी बहुत ज़्यादा है। 57 लाख का कौन सा है आपको? Inventory ordering overrides. ऐड 01 P3 बाई अकाउंट बाई वीक। सो ये अपना एक्सेस ड्राइवर मॉड्यूल है। वो एक्सेस ड्राइवर मॉड्यूल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो ये हो गया। और ये जो है डिमांड फोरकास्ट मॉड्यूल भी बहुत बड़ा है, ठीक है ना। ये दो मॉड्यूल जो है आपको लेंथी है, बाकी का तुम कौन सा भी डिलीट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। Okay, sir. नंबर टू डाल के मैं ऑलरेडी क्रिएट करो बोल के बोला था मैं, जब ये 2-3 है बस। Okay, sir. ये भी एक थोड़ा बड़ा हिस्टोरिक वॉल्यूम भी बड़ा है, ठीक है ना। ये 3 मॉड्यूल्स है बस, उतना ही है। वो भी क्रिएट करके डिलीट कर देना नंबर 2 डाल के, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ठीक है ना यार। सब जने समझ रहे ना क्या हो रहा। अगर वर्क स्पेस अगर क्रैश हो गए तो कैसा मेंटेन करना, अगर दोनों एक ही जना 2 वर्क स्पेस पे अगर काम कर रहे तो कैसा मेंटेन करना, समझ में आ रहा ना? यस, समझ में आ रहा ना यार? शब्बीर भाई समझ में आ रहा? वर्क स्पेस नहीं है बोल के परेशान नहीं होना, आराम से जो है। सर मैं इमरान भाई कर रहा था, एक में कर रहा था। हाँ वही, अगर तुम लोग दोनों सप्लाई चेन मॉडल डाउनलोड करें तो प्रॉब्लम होता। दोनों जाके दो सप्लाई चेन मॉडल डाले बोले तो आपको वर्क स्पेस ही नहीं है, यहाँ पे जाम हो जाता सीधा। यहाँ देखो आपका वर्क स्पेस कितना है इसका। मेरा ऑलरेडी जो है सप्लाई चेन मॉडल का 600 MB है, 600 MB हो गया। दोनों सप्लाई चेन 600 1200 यानी आपका 1 GB है। 1200 MB नहीं होता। अब नहीं, 2 डाउनलोड नहीं करना, एक ही उसमें जो है मॉड्यूल्स डबल क्रिएट कर लेना, और जो बड़े मॉड्यूल्स है वो डिलीट करना। समझ गया सर, दोनों कर रहे थे। वैसा करके जो है काम चला सकते, नहीं तो उन्होंने वर्क स्पेस नहीं बोल के बहुत परेशान हो रहे, ठीक है ना। हाँ सर। तो खैर जो है ये हो गया आपका। सो दाऊद जो है समझ में आ गया ना यार? इसमें कुछ डाउट है? ठीक है। ये जो है मॉड्यूल्स वगैरह कैसा देखना है, जो है ये साइज क्या है पूरा समझ में आ रहा ना? तो नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वर्क स्पेस कंट्रोल करना ये मेजर स्पेयरसिटी के रिड्यूस करना बोलते हैं इसको। यानी मॉड्यूल साइजेस जो है कैसा कम करना, कैसा जो है कि जितना कम करे तो आपका मॉडल उतना एक्टिव रहता। जो यहाँ पे मेरा 66% फुल है, यहाँ पे मेरा वर्क स्पेस 66% फुल है। 681 MB यूज है आउट ऑफ 1 GB। ये ट्रायल वर्जन है इसलिए इतना है, 1 GB का ही। रियल वर्जन में 130 GB का रहता, 130 GB वर्क स्पेस रहता। एक मॉडल आपको 20 to 30 GB का रहता, ठीक है ना। तो ये जो है इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा। खैर जो है वहाँ पे मॉडल्स भी ज़्यादा रहते और वो अलग है। तो मगर मॉडल का साइज़ देखने का तरीका तो यही है, यानी मैनेज मॉडल में जाके आप देख सकते किसका मॉडल का साइज़ कितना है, क्या है, पूरा देख सकते। आपको स्पेयरसिटी के अंदर यही रहता, मॉडल का जो है साइज़ कैसा रिड्यूस करना, और जो है कौन सा साइज़ कितना है, डायमेंशंस अनवांटेड क्या है, समरी मेथड्स क्या एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है वो निकाल देना, जो समरी मेथड्स वगैरह है, और काम पे टाइम रेंज यूज़ कर सकते। ये पूरा जो है आपको एक स्पेयरसिटी का भी एक अपन कैसा जो है एक स्पेयरसिटी कैसा इफेक्ट कर रहा है, एक टॉपिक कवर करे थे बीच में। क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स होते अपने को, कैसा मॉडल का साइज़ रिड्यूस कर सकते, ठीक है ना यार। तो एक बीच में एक टॉपिक कवर कर रहे थे, याद है नहीं है? डायमेंशंस चेंज करने के अंदर, रिड्यूस करने के अंदर जो है अब कैसा मॉड्यूल का साइजेस जो है कैसा रिड्यूस हो रहा देखे थे हम, याद है क्या वो? यस सर। तो वो जो है ऐसा, यानी डायमेंशन अगर चेंज कम करने से, और जो है आपको लाइन आइटम्स निकाल देने से, समरी मेथड चेंज करने से, टाइम स्केल चेंज करने से क्या होता आपको पूरा एकदम जो है सेल्स कम हो जाते, सेल काउंट कम हो जाता है। यहाँ पे सेल काउंट कम हो के आपको मॉडल जो है साइज छोटा हो जाता, यानी आपको एक्स्ट्रा स्पेयरसिटी नहीं बढ़ता, यानी स्पेयरसिटी रिड्यूस करते हम, यानी साइज कम करे तो फ्लेक्सिबल रहता, ज़्यादा जो है ओवर स्पेस का नहीं रहता, मॉडल जल्दी ओपन नहीं होता। अगर साइज बढ़ गए तो मॉडल का क्या होता, फ़ोन जैसा हैंग होता ना वैसा होता, जल्दी ओपन नहीं होता,
यानी अगर फ्री रहा तो क्या होता, जल्दी ओपन होता मॉड्यूल भी जल्दी ओपन हो जाते, ज़्यादा जो है मुश्किल नहीं रहता। सो इसके जो कैपेसिटी है आपका, कैपेसिटी ऑफ मॉड्यूल, इन्वेंट्री कैपेसिटी मॉड्यूल, ये है आपका मंथली डेटा है, मंथली वाइज, सो हाफ ईयरली है, और एनुअल डेटा भी है। ये पूरा हो गया आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कैपेसिटी वगैरह है। अब नेक्स्ट जो है आपको एक्टिविटी जो है क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर यूएक्स पे, जैसा ये मैं फाइनल में बताता हूँ, ये थोड़ा लेंथी है। तो उसके बाद जो है आपको जो क्रिएट रोल्स, सो रोल्स क्रिएट करना है इसके अंदर। क्रिएट रोल्स क्रिएट करने का जो बहुत सिंपल एक्टिविटी है। तो क्रिएट प्रोडक्ट सप्लाई मैनेजर रोल, प्रोडक्ट सप्लाई यूज़र्स के अंदर जाके प्रोडक्ट सप्लाई मैनेजर का एक रोल क्रिएट करना है इसके अंदर। जिसने अपन लास्ट टाइम जो है 2 days बैक जो संडे के दिन बताया था रोल कैसा क्रिएट करते क्या है, आपको जो है यहाँ पे सप्लाई क्या कौन सा है यार इसका रोल, प्रोडक्ट सप्लाई मैनेजर है। एंड में जो है प्रोडक्ट सप्लाई मैनेजर है, ये जो है एक्स्ट्रा ऐड करा था मैं उस दिन दिखाने के लिए, ये सप्लाई मैनेजर डिलीट कर दे रहा हूँ। प्रोडक्ट सप्लाई मैनेजर हो गया। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट सप्लाई मैनेजर के अंदर ईच प्रोडक्ट सप्लाई मैनेजर शुड बी एबल टू अपडेट देयर असाइंड प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट SKU बट व्यू ओनली देयर असाइंड प्रोडक्ट फैमिली अक्रॉस ऑल रीजन। सो इसके अंदर क्या है, इनका प्रोडक्ट, इनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है प्रोडक्ट सप्लाई मैनेजर को, क्या देना है इनको, रीड एंड राइट, इनको रीड एंड राइट एक्सेस देना है प्रोडक्ट सप्लाई मैनेजर को देयर असाइंड प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट SKUs। इनको जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स का और प्रोडक्ट SKU को इनको कंट्रोल देना है, रीड एंड राइट एक्सेस देना है इनो। बट इसके अंदर अपडेट यानी इसके अंदर राइट एक्सेस देना है। राइट एक्सेस जो है असाइंड जो भी प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट SKU इनको जो रिस्पॉन्सिबल है वो जो है राइट एक्सेस देना है। बट व्यू ओनली देयर असाइंड प्रोडक्ट फैमिली अक्रॉस ऑल रीजन, यानी पूरा उनको जो भी रिलेटेड असाइन करे रीजन अक्रॉस, उसके अंदर जो है डेटा को देखना प्रोडक्ट फैमिली अक्रॉस। तो इसको सबसे पहले क्या करना, रोल क्रिएट करें। रोल के अंदर जो है रोल के अंदर क्या करना, प्रोडक्ट सप्लाई मैनेजर है तो इसके अंदर क्या करना है, इनको प्रोडक्ट का जो डिटेल्स है क्या क्या देना है इनको, प्रोडक्ट साइन प्रोडक्ट SKU का जो है इनको कंट्रोल देना है। तो इसके ऊपर जो है जो प्रोडक्ट इनका है, प्रोडक्ट क्या करना है अपने को, सबसे पहले जो है जनरल लिस्ट के अंदर जाना है। जनरल लिस्ट के अंदर जाके क्या करना है, उनको सेलेक्टिव एक्सेस देना है। तो जनरल लिस्ट के अंदर जो है क्या करना है अपने को, जनरल लिस्ट के अंदर भी जो है उनको सेलेक्टिव एक्सेस क्रिएट करें। और सेलेक्टिव एक्सेस क्रिएट करके नेक्स्ट क्या करना है, इनको क्या करना है, ये प्रोडक्ट रोल को इनको जो असाइंड है वो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट SKU को जो है इनको एक्सेस देना है, राइट एक्सेस। बाकी का जो है अदर प्रोडक्ट फैमिली अक्रॉस अदर जो प्रोडक्ट्स है उनका रीजन के अंदर क्या करना है, उनको व्यू एक्सेस देना है। सिंपली क्या करना है, इनको यूज़र्स के अंदर जाके इनको जो यूज़र्स के अंदर जाना है, प्रोडक्ट फैमिली राइट, प्रोडक्ट P1 प्रोडक्ट फैमिली रीड, P1 प्रोडक्ट राइट,
P2 प्रोडक्ट्स रीड, यानी इसके अंदर जो है एक्सेस सेलेक्ट करना है अपने को। एक्सेस सेलेक्ट करके जो है इनको कितने जो है चीज़ें एक्सेस देना है वो दे देना अपने को। उसका लिस्ट नहीं दिए, उसका लिस्ट क्या करे यार, उसका लिस्ट कुछ भी नहीं दिए। यहाँ पे जो है परवेज़ है और जो है ये तीनों है, और इसके अंदर जो है मैं फुल एक्सेस निकाल के प्रोडक्ट सप्लाई मैनेजर दे दे रहा हूँ रोल। तो इसके अंदर जो है एक्सेस जो है कितने प्रोडक्ट को देना है, कितने प्रोडक्ट को देना है उनको एक्सेस, उनको जो भी असाइन करते हैं उनको जो है राइट एक्सेस जो भी देना है इसके अंदर सेलेक्ट कर लेना। 1 2 1 2 सेलेक्ट कर लिया, राइट एक्सेस कितना देना है एंड रीड एक्सेस कितना देना है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। ऑलरेडी जो है ये दोनों को राइट एक्सेस दिए तो दूसरा 2 रीड एक्सेस दे दिए, ठीक है ना। ये जो है 2 प्रोडक्ट फैमिली है, प्रोडक्ट फैमिली वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे जो है पूरा चीज़ें उनको जो है जो एक्सेस देना है वहाँ पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, जो भी प्रोडक्ट राइट एक्सेस देना है। और जो भी अदर जो राइट एक्सेस के अलावा जो है जो जो रीड एक्सेस देना है क्या करना है, यहाँ पे रीड एक्सेस देना है यहाँ पे। काशी को यहाँ पर पूरे यहाँ पर लिस्ट ही है ना जो दिख रहे हैं सो? हाँ पूरे लिस्ट है ना यहाँ पर जो हाँ दिख पूरा रहा नजर लिस्ट आ है, रहा है? पूरा लिस्ट है जो जो अपने उधर को जो जो इधर भी एक्सेस क्या बोल रहे हैं और एक हेडर में भी रोल्स एंड लिस्ट बोल के यहाँ और एक टैब है ना ऊपर। यहाँ पे। हाँ राइट साइड में आया तो राइट साइड में आया तो रोल्स लिस्ट बोल के है ना राइट 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 अच्छा और राइट ऊपर ऊपर कहाँ है यहाँ पे? नहीं ऊपर ऊपर गए तो ऊपर जो टैब है जैसे कि रोल्स मॉडल रोल हाँ वर्जन ये तो रोल्स हाँ लिस्ट, ये रोल्स है हाँ। उसके बाद राइट साइड में आया तो रोल्स लिस्ट है ना। हाँ रोल लिस्ट है। तो यहाँ पर अच्छा सिर्फ अच्छा यहाँ पे लिस्ट साइड में है और यहाँ पे मैनेजर्स के हिसाब से टिक करके देना है। ओके हाँ ये प्रोडक्ट मैनेजर को कौन सा लिस्ट एक्सेस देना है यहाँ पे जो है क्या रहता है इसमें डायरेक्ट एक लिस्ट का टोटल कंट्रोल दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर सेलेक्ट करें तो पूरा प्रोडक्ट फैमिली, पूरा प्रोडक्ट साइन, पूरा P3 के पूरा लिस्ट का कंट्रोल मिल जाता, ठीक है ना। अगर इनको इंडिविजुअली कंट्रोल करना है तो फिर क्या करना, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना सेलेक्टिव एक्सेस, यानी कुछ प्रोडक्ट अब यहाँ पे अगर एक्सेस मैं दे दिया तो पूरा जो है लिस्ट, पूरा प्रोडक्ट फैमिली, पूरा प्रोडक्ट्स, पूरा SKU कंट्रोल कर सकते हैं उनको। अगर यहाँ पे मैं क्या कर रहा सेलेक्टिव एक्सेस के अंदर जाके फिर सेलेक्ट करने से क्या होता, प्रोडक्ट फैमिलीज के अंदर कुछ राइट एक्सेस दे रहा हूँ, कुछ रीड एक्सेस दे रहा हूँ। P2 प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ राइट एक्सेस दे रहा हूँ, कुछ रीड एक्सेस दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर के आइटम्स को कंट्रोल कर सकते हैं सेलेक्टिव एक्सेस से, ठीक है ना। वही है डिफरेंस जो है, पूरा लिस्ट कंट्रोल मिल जाता है यहाँ पे। रोल्स के अंदर सेलेक्ट करें तो पूरा एक्सेस मिल जाता, मगर आप इसके अंदर अगर कंट्रोल करें तो क्या होता, इसके अंदर आपको पूरा लिस्ट के अंदर कितने चीज़ों को कंट्रोल करना है यहाँ पे मालूम होता अपने को। ये हो गया आपका जो है प्रोडक्ट सप्लाई मैनेजर का जो है रोल क्रिएट करके जस्ट चेक करते हैं यहाँ पे, चेक करके जो है वे निकाल देते हैं, क्योंकि अपने को ये रखने का नहीं है, क्योंकि अपने को जो कौन सा एक्सेस होना है जस्ट चेकअप पर्पस रखते हैं यहाँ पे बस, ठीक है ना। चेक कर लेके फिर निकाल देते हैं हम पूरा जो है, उसके बाद पूरा निकाल देते। नहीं तो फिर ऐसी इससे पहले एक जना कौन की ऐसी जो है सेलेक्ट करके रख लिए, बाद में गए तो पूरा कुछ भी हो रहा ही नहीं था काम, पूरा निकाल देना, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे जो है फिर मुश्किल हो जाता, बाद में जो है कुछ भी नहीं, ये खाली टेस्ट कर लेके ऐसा अपन कंट्रोल कर सकते, चेक करके निकाल देना। प्रोडक्ट सप्लाई मैनेजर का एक रोल है, वो रोल के अंदर जो है क्या क्या कंट्रोल देना है यहाँ पे डिसाइड हो जाता अपने को, कौन सा कंट्रोल देना है, क्या देना है। यहाँ पे रोल्स के अंदर अपन देख सकते कौन सा मॉड्यूल देना है, उनको वो दे देते, जो एक्सेस नहीं देना है नन रखते। और लिस्ट वगैरह है, लिस्ट है, फिर सेलेक्टिव एक्सेस है, पूरा जो है उनको जो कंट्रोल देना है इनको कंट्रोल दे के फिर उनको पूरा जो है चेंज कर देना अपने एज ए एंड यूज़र। जो है एंड यूज़र प्रोडक्ट सप्लाई मैनेजर को जो देना है वो सेटअप करके उनको एक्सेस जो है यूज़र का ऐसा क्रिएट कर देते हैं, उनको
ऐड कर दे के उनको वो एक्सेस देते, मगर अपने को क्या रहना, मॉडल रोल अपने क्या रहना यार, मॉडल बिल्डर को कौन सा एक्सेस रहना, फुल एक्सेस रहना ना, WSS हाँ वर्क स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर रहना और फुल एक्सेस भी रहना है फुल ना, एक्सेस जी फुल एक्सेस रहना। वो लोगों को जो है एंड यूजर को पूरा एक्सेस नहीं रहना है, जो जितना होना है उतना ही एक्सेस देके उनको छोड़ देते। ये हो गया आपका सप्लाई चेन, क्या प्रोडक्ट सप्लाई मैनेजर है। और नेक्स्ट रोल क्या है, रीजनल वाइस प्रेसिडेंट। रीजनल वाइस प्रेसिडेंट का क्या है, रीजनल वाइस प्रेसिडेंट और एक रोल है, यानी रीजन लेवल में इन्हों कंट्रोल करते, रीजन लेवल में जो है मॉडल को कंट्रोल करते। ये भी एक रीजनल वाइस प्रेसिडेंट का जो है रीजनल लेवल जो है कंट्रोल करते, इनको जो एक्सेस देना है, ईच रीजनल वाइस प्रेसिडेंट शुड बी एबल टू व्यू ओनली द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लोकेटेड इन देयर असाइंड रीजन। यानी जो है 2-3 रीजनल वाइस प्रेसिडेंट है 2-3 रीजन को, अब अपने एक रीजन को जो है उनको एक रीजन के हिसाब से कंट्रोल दे देना, पूरा कंट्रोल नहीं देना इनको, ठीक है ना यार। तो पूरा कंट्रोल दिए तो पूरा देख लेते हैं। तो इसके लिए जो रीजन रिलेटेड है उनका वो एक्सेस दे देना। दे शुड नॉट एबल टू चेंज द कैपेसिटी आर स्टैंडर्ड शिपिंग मेथड इन एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। सो यानी कैपेसिटी और जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कैपेसिटी के अंदर जो है चेंज करे ऐसा इनको ऑप्शन नहीं देना। तो उसके अंदर जो है बाकी का इनके जो रिलेटेड है उनका ही वही दे देना। तो उसके जो है अपन रीजन के अंदर क्या करना, अपन जनरल लिस्ट के अंदर जो है इनको जो रीजन रिलेटेड है वही एक्सेस दे देना। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, तो एक तो जो है लिस्ट के अंदर रीजनल वाइस प्रेसिडेंट रीजन जो है इनको एक्सेस दे दिए लिस्ट में। फिर यूज़र के अंदर क्या करते हैं, अब सेलेक्टिव एक्सेस दे के रीजन का जो है सेलेक्टिव एक्सेस दे दिए यहाँ पे। इसके बाद जो है आपको रीजन के अंदर इनका जो रिलेटेड है वही रीजन के अंदर दे देना है यहाँ पे, रीजन राइट रीजन रीड। सो इसके अंदर जो है अगर फॉर एग्जांपल जो है मैं सेलेक्ट करा रीजनल वाइस प्रेसिडेंट रोल, तो इनके लिए कौन सा रीजन का रिलेटेड है, अमेरिका का रीजन रिलेटेड रहा तो अमेरिका राइट दे दिए। अब जिसको रीड देना है, अगर दूसरे 2 रीजन्स रीड देना है तो दे सकते, एक देना है तो एक दे सकते, या फिर पूरा ही नहीं देना है तो पूरा ही नहीं दे सकते, क्योंकि यानी वो रीजन का डिटेल नहीं देख सकते उन्होंने, ठीक है ना। ऐसा जो है उनको रीजनल मैनेजर को जो है रीजन वाइज कंट्रोल कर सकते हैं उनको सेलेक्टिव एक्सेस देके। ये हो गया आपका रीजनल वाइस प्रेसिडेंट रोल, और जो है उनका जो भी एक्सेस देना है जहाँ से अपने को मालूम हो जाता। तो ये रोल यानी उनका रिलेटेड जो भी मॉड्यूल्स है उनको कंट्रोल दे देना, और ये रोल क्रिएट करके टेस्ट एज ए एंड यूजर फॉर ईच एंड न्यू रोल एडेड द मॉडल, क्लीन अप द मॉडल कंटेंट्स पैनल। ये रोल क्रिएट करके जो है रोल क्रिएट करने के बाद ये रोल जो है यहाँ पे सबमिट करके चेक करो बोल रहे। अभी जो भी है परवेज है, इसके अंदर जो है फुल एक्सेस के जगह क्या करो बोल रहे हैं, फुल एक्सेस के जगह
यहाँ पे रीजनल वाइस प्रेसिडेंट डाल के चेक करना, चेक करे तो जो है क्या है, जो अपन एक्सेस दे रहे वही ओपन होना, दूसरा ओपन नहीं होना। फुल एक्सेस दिए तो पूरा ओपन होता। अब रीजनल वाइस प्रेसिडेंट डाल के मैं दूसरा जो है चीज़ें ओपन करने गए तो क्या होता, इनको जो है एक्सेस क्या है वही मॉड्यूल्स ओपन होते। रीजनल वाइस प्रेसिडेंट के अंदर जो है ये मॉड्यूल के अंदर नन है अपने को। अब ये अगर मैं जाके अगर मॉड्यूल ओपन करूं तो अपने क्या बताता देखेंगे। आस्क योर वर्कस्पेस एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द एक्सेस, यू कैन सी हियर। और मॉड्यूल के अंदर जो कंट्रोल दिए वही ओपन होता, ठीक है ना। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? Yes, Yes. yes, sir. Yes. तो यानी जो कंट्रोल दिए वही ओपन होता, दूसरा ओपन नहीं होता। ऐसा जो है चेक करने का रहता। तो ये हो गया आपका जो है एक मॉडल सेट करके